Hello students. So in today's class we are going to study the endocrine system and the hormones. So basically the endocrine system, it is a system of the chemical coordination and integration of the body functions. Okay. So in our body basically there are two systems for the coordination and integration of the body function. One is for the nervous coordination. So for that we have the nervous system, and one is through the chemicals. For that we have the endocrine system. So in today's class we are going to discuss the endocrine system. Nervous system we will study later on. Okay. So this endocrine system is composed of the different glands which are called the endocrine glands. ठीक है. So basically endocrine glands are ductless glands. So they don't have any ducts. तो अगर उनमें डक्ट नहीं है तो क्या होता है, देयर सिक्रीशन विल बी रिलीज इनटू द ब्लड. ठीक है. और फिर ब्लड के थ्रू वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेंगे. ठीक है. जबकि इन आवर बॉडी देयर आर वन अदर टाइप ऑफ द ग्लैंड व्हिच आर कॉल्ड द एक्सोक्रीन ग्लैंड्स. ठीक है. तो ये एक्सोक्रीन ग्लैंड्स क्या होती हैं, ये डक्ट ग्लैंड्स होती हैं. सो बिकॉज दे हैव डक्ट, तो उनके सिक्रीशन डायरेक्टली टारगेट ऑर्गन्स में रिलीज होते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा लीवर. लीवर सिक्रीट्स दी बाइल जूस, और उसका जो बाइल जूस होता है वो बाइल डक्ट के थ्रू डायरेक्ट इंटेस्टाइन में रिलीज किया जाता है. ठीक है. बट एंडोक्रीन सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ द एंडोक्रीन ग्लैंड्स व्हिच आर द डक्टलेस ग्लैंड्स. ठीक है. अब endocrine glands different types के हैं. There are different endocrine glands in our body. For example, pituitary gland, thyroid gland, parathyroid, adrenal and pineal gland. Okay. But it is not like that endocrine system is composed of endocrine glands. एंडोक्रीन सिस्टम में ग्लैंड्स के अलावा बहुत सारे ऑर्गन्स और टिश्यूज भी हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं. ठीक है. और उनको भी हम एंडोक्रीन सिस्टम में ही इन्वॉल्व करते हैं. ठीक है. अब there are several organs and tissues. वो क्या हैं? For example, hypothalamus, thymus, pancreas, ovaries, testes, stomach, liver, etc. ठीक है. तो taken together, all these endocrine glands and the all cells and tissues which secrete the hormone are called the endocrine system. ठीक है. So basically the hormones are the chemical messengers which will convey the message of these glands to the target organs. ठीक है. So in this figure you can find out the location of the different endocrine gland. For example, here you can see it is the hypothalamus, pituitary gland and pineal gland. These are located in the brain. ठीक है. तो ये pineal, इसके अलावा अगर आप देखो, so this is the thyroid gland जो कि ट्रैकिया और लैरिंग्स के ज्वाइंट पे प्रेजेंट होती है. ठीक है. फिर आपका हो गया ये लीवर इज नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड. फिर ये आपका हो गया एड्रीनल ग्लैंड. एड्रीनल ग्लैंड जो होती है वो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है. सो इट इज किडनी, इट इज प्रेजेंट अबव द किडनी. पैनक्रियास एंड सो ऑन. ठीक है. टेस्टिस एक्सेट्रा. तो जो भी इनके प्रोडक्ट्स होते हैं, सिक्रीशंस होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के, दे आर कॉल्ड द हार्मोन्स. ठीक है. अब ये हार्मोन्स कहाँ आ जाते हैं? ब्लड में. फिर ब्लड के थ्रू जो होता है ये टारगेट ऑर्गन तक जाते हैं और वहां पे अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं. ठीक है. तो हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स. they perform different functions. For example, they chemical composition and volume of internal environment को regulate करते हैं. मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी बैलेंस का काम करते हैं. इसके अलावा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स भी करते हैं. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी कंट्रोल करते हैं. ठीक है. सो देयर आर डिफरेंट फंक्शंस व्हिच आर परफॉर्म बाय द हार्मोन्स. ठीक है. So here you can see that hormone is a mediator molecule that is released in one part of the body, that is by an endocrine gland, but regulate the activity of the cells in other parts of the body, that is the target organ. ठीक है. अब हार्मोन जो होते हैं वो अपना इफेक्ट कैसे एक्सर्ट करते हैं? ठीक है. तो हार्मोन को अपना इफेक्ट शो करने के लिए सबसे पहले उनका रिसेप्टर से बाइंड होना बहुत जरूरी होता है. ठीक है. इसलिए जो हार्मोन होते हैं उनका एक्शन इज वेरी स्पेसिफिक. ठीक है. अभी मैंने आपको बताया कि हार्मोन जो होते हैं वो पहले ब्लड में रिलीज होते हैं, उसके बाद वो अपने टारगेट ऑर्गन पर एक्ट करते हैं. ठीक है. अब ब्लड तो आपको पता है कि सारे टिश्यूज के सराउंडिंग में है. सो व्हाई इट इज सो कि हार्मोन जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर ग्लैंड पर ही
अपना इफेक्ट शो करता है, सारे ग्लैंड्स पर नहीं। क्यों? क्योंकि हार्मोन को अपना एक्शन शो करने के लिए रिसेप्टर से बाइंड होना जरूरी होता है, ठीक है। एंड दीज रिसेप्टर आर प्रेजेंट ऑन स्पेसिफिक ऑर्गन्स। तो जिस ग्लैंड, ऑर्गन या टिश्यू पर उस हार्मोन के स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, केवल उसी ग्लैंड पर हार्मोन बाइंड होके अपना इफेक्ट शो कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, hormone exert their effects by binding to receptor or in their target cell। ये अभी मैं आपको explain करूंगी what is mean by or in, ठीक है। now तो हार्मोन जो होते हैं they may be of different chemical nature। so broadly हमने chemical nature के बेस पे हार्मोन्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, लिपिड soluble hormones and water soluble hormones, ठीक है। So lipid soluble hormones are those hormones which are soluble in lipids, ठीक है। So there are 2 types of the hormones, 2 groups of the hormones which are lipid soluble। One is steroid hormone and another one is the thyroid hormone। तो जितने भी steroid hormone होते हैं they all are derived from the cholesterol, ठीक है। अब steroid hormone में आपके एक तो आ जाते हैं सेक्स हार्मोन, जितने भी हार्मोन ओवरीज एंड टेस्टिस से सिक्रीट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ठीक है, ये सारे आपके हो गए स्टेरॉइड हार्मोन। और इसके अलावा आपका एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो भी सारे स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी जब हम एड्रीनल ग्लैंड पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी आती है आपके थायराइड हार्मोन की, विच आर लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। तो थायराइड हार्मोन 2 टाइप के होते हैं, T3 एंड T4, ठीक है। तो T3 का नाम होता है ट्राई आइडोथायरोनिन और T4 का नाम होता है टेट्रा आइडोथायरोनिन या फिर इसको हम थायरोक्सिन भी कहते हैं। और इन दोनों को कंबाइंडली हम कहते हैं थायराइड हार्मोन, ठीक है। अब थायराइड हार्मोन जो बनते हैं ये अमाइनो एसिड टायरोसिन के आयोडीनेशन से बनते हैं, ठीक है। तो अमाइनो एसिड टायरोसिन होता है, उस पर आयोडीन एटम बाइंड होते जाते हैं और थायराइड हार्मोन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ भी लिया जाता है। तो थायराइड हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड बाय द आयोडीनेशन ऑफ द अमाइनो एसिड टायरोसिन, ठीक है। The second chemical category of the hormone is the water soluble hormone। तो ये हार्मोन जो होते हैं ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे 2 टाइप के हार्मोन आते हैं, अमाइन हार्मोन एंड प्रोटीन एंड पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। अब अमाइन हार्मोन जो होते हैं इनको हम अमाइन हार्मोन एक तो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अमाइनो एसिड से बनते हैं, ठीक है। अब अगर आपको पता हो तो सारे अमाइनो एसिड में 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक अमाइनो ग्रुप, ठीक है। तो जब ये अमाइन हार्मोन बनते हैं तो इसमें ये अमाइन ग्रुप तो अमाइनो एसिड का रह जाता है, बट ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है ये डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू निकल जाता है, ठीक है। तो होता क्या है, इन अमाइन हार्मोन में दे विल रिटेन दी अमाइन ग्रुप और अमाइनो ग्रुप ऑफ द अमाइनो एसिड, इसलिए हम इनको कहते हैं अमाइन हार्मोन, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जो अमाइन हार्मोन बनते हैं दे आर फॉर्म बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ द अमाइनो एसिड, ठीक है, इसलिए हम इनको अमाइन हार्मोन कहते हैं। अब देयर आर डिफरेंट हार्मोन जो डिफरेंट अमाइनो एसिड के मॉडिफिकेशन से बनते हैं, ठीक है। तो देयर इज अमाइनो एसिड टायरोसिन। अब टायरोसिन के मॉडिफिकेशन से 3 हार्मोन्स बनते हैं, एक तो इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन, ठीक है। सिमिलरली जो आपका अमाइनो एसिड हिस्टिडीन है इसके मॉडिफिकेशन से बनता है हिस्टामिन। ऐसे ही ट्रिप्टोफैन के मॉडिफिकेशन से बनते हैं सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन, ठीक है। तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द अमाइन हार्मोन जो बनते हैं आपके अमाइनो एसिड के मॉडिफिकेशन से। और हम इनको अमाइन हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि अमाइनो एसिड के अमाइन ग्रुप को रिटेन करके रखते हैं, ठीक है। अब वाटर सॉल्युबल हार्मोन की जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज द पेप्टाइड एंड द प्रोटीन हार्मोन। अब जो अमाइनो हार्मोन थे वो एक अमाइनो एसिड के मॉडिफिकेशन से बन रहे थे, ठीक है, जबकि जो आपके ये पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन है ये अमाइनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। पॉलीमराइजेशन मतलब कि
जब बहुत सारे यूनिट आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं तो वो एक पॉलीमर बनाते हैं, ठीक है। तो दीज आर दी पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन। तो पेप्टाइड हार्मोन जो होते हैं दे आर स्मॉल मॉलिक्यूल, इसमें 3 से 49 तक अमाइनो एसिड यूनिट्स हो सकती हैं, ठीक है। जबकि प्रोटीन हार्मोन आर लार्जर मॉलिक्यूल, इसमें 50 to 200 अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो पेप्टाइड हार्मोन का एग्जाम्पल हो गया एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको हम ADH कहते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है वैसोप्रेसिन, ठीक है। और दूसरा आपका हो गया ऑक्सीटोसिन। ये दोनों हार्मोन आपके सिक्रीट होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। ये अभी हम वैसे डिटेल में पढ़ेंगे अभी। इसके अलावा प्रोटीन हार्मोन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन होते हैं दे ऑल आर दी प्रोटीन हार्मोन। लाइक पैनक्रियाज से जितने भी सिक्रीट होते हैं दे आर ऑल्सो प्रोटीन हार्मोन्स, ठीक है। इसके अलावा कुछ हार्मोन ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के भी होते हैं। व्हाट इज मीन बाय ग्लाइकोप्रोटीन? ग्लाइको मीन्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज अ टेबल ऑफ द लिपिड सॉल्युबल हार्मोन, ठीक है। तो ये लिपिड सॉल्युबल हार्मोन में आपके स्टेरॉइड हार्मोन आ गए और थायराइड हार्मोन आ गए, ठीक है। अब स्टेरॉइड हार्मोन में आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया था टेस्टिस से सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन, ओवरी से सिक्रीट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इसके अलावा एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल एंड एंड्रोजन। इसके अलावा किडनी से भी एक हार्मोन सिक्रीट होता है कैल्सिट्रायोल, ये भी स्टेरॉइड हार्मोन है, ठीक है। तो कई बार एग्जाम्स में आपसे एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि स्टेरॉइड हार्मोन के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं और वो किस ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, ठीक है। ऐसे ही थायराइड हार्मोन T3 एंड T4, और ये थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, थायराइड ग्लैंड में फॉलिकुलर सेल से, ठीक है। ऐसे ही यहाँ एक टेबल है वाटर सॉल्युबल हार्मोन की। तो वाटर सॉल्युबल हार्मोन में अमाइन हार्मोन आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया, इपिनेफ्रिन, नॉरइपिनेफ्रिन, ये सिक्रीट होते हैं एड्रीनल मेडुला से। मेलाटोनिन सिक्रीट होता है पाइनियल ग्लैंड से। हिस्टामीन आपका सिक्रीट होता है मास्ट सेल से, और सेरोटोनिन सिक्रीट होता है प्लेटलेट से, ठीक है। इसी तरह से दिस इज अ टेबल ऑफ द पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन। जितने भी हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होते हैं रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन, वो सारे आपके हो गए दिस प्रोटीन हार्मोन्स, ठीक है। ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायूरेटिक पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। एंटीरियर पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन हैं पैनक्रियास के, पैराथायरॉइड ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड के, ठीक है। इसके अलावा आपका हो गया stomach, kidney and adipose, ठीक है। So here you can learn these examples of the hormones which comes in the category of the peptide and protein and from which gland these hormones are secreting, ठीक है। तो एग्जाम में कई बार इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है। अब आता है एक्शन ऑफ हार्मोन। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि किसी भी हार्मोन को अपना एक्शन परफॉर्म करने के लिए उसको रिसेप्टर से बाइंड होना जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है हार्मोन मस्ट फर्स्ट अनाउंस इट्स अराइवल टू अ टारगेट सेल व्हाइल बाइंडिंग टू इट्स रिसेप्टर, ठीक है। अब हार्मोन के केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग उनका रिसेप्टर साइट भी चेंज हो सकता है, ठीक है। मतलब वाटर सॉल्युबल हार्मोन जो होते हैं उनके रिसेप्टर की साइट अलग होती है और लिपिड सॉल्युबल हार्मोन रिसेप्टर की साइट अलग होती है, ठीक है। तो जो भी आपके लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होते हैं उनके रिसेप्टर जो प्रेजेंट होते हैं दे आर प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल। अब इनसाइड द टारगेट सेल ये साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। जबकि जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन होते हैं उनके रिसेप्टर हमेशा टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों है? आप लोग को पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की बनी होती है, ठीक है। तो इसलिए जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होते हैं वो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर जा सकते हैं और सेल के अंदर अपने रिसेप्टर्स पे बाइंड हो सकते हैं। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो लिपिड की बनी है उसे क्रॉस ही नहीं कर सकते, सो इट इज अ बैरियर। तो इसलिए उनके जो रिसेप्टर होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
Now, let's start with the first endocrine gland, which is the hypothalamus and pituitary gland. ये दोनों को हम साथ में ही पढ़ते हैं क्योंकि hypothalamus pituitary को कंट्रोल करता है. ठीक है, तो hypothalamus and pituitary gland हम लोग साथ साथ पढ़ते हैं. ठीक, तो आप लोगों ने सुना होगा कि पहले पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड कहा जाता था क्योंकि ऐसा नोशन था that pituitary gland control the secretion from other glands. ठीक है, but now it is well known that pituitary gland is also under the control of the hypothalamus. That means pituitary gland itself has a master, that is the hypothalamus. ठीक, अब hypothalamus जो होता है वो करीब 9 डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट करता है. अब ये हार्मोन दो तरह के होते हैं, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग, जबकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करती है 7 हार्मोन्स. ठीक है, ये सारे हार्मोन्स जो होते हैं ये प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म एंड होम्योस्टेसिस. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो एक पी शेप स्ट्रक्चर है एंड दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, कई बार ये पूछ लिया जाता है वेयर इट इज लोकेटेड. तो ये जो होती है एक तो आपके ब्रेन में प्रेजेंट होती है. ठीक है, बट ब्रेन में भी देयर इज अ स्फेनॉइड बोन. ठीक है, अब इस स्फेनॉइड बोन में एक पिट होता है. ठीक है, गड्ढा, जिसको कहते हैं सेला टर्सिका. तो ये उस पिट में प्रेजेंट होती है. ठीक है, सो इट इज लोकेटेड इन द सेला टर्सिका ऑफ द स्फेनॉइड बोन. ठीक, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये आपके हाइपोथैलेमस से अटैच रहती है. ठीक, बाय स्टॉक जिसको हम कहते हैं इनफंडिबुलम. ठीक है, सो देयर आर टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वन, लोकेशन इज in the sphenoid bone which is sella turcica, or it attaches to the hypothalamus by a stalk which is called the infundibulum. ठीक है, अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली 2 डिफरेंट रीजन्स में या पोर्शंस में सेपरेट होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी. ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है it constitutes the large part of the total pituitary gland, so it comprises about 75% of the total weight of the gland. ठीक है, अब एंटीरियर पिट्यूटरी में भी 2 पार्ट होते हैं, पार्स ट्यूबरालिस एंड पार्स जस्टालिस. इसका डायग्राम मैं अभी आपको दिखाती हूँ और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ फिर से. ठीक है, अब जो भी ये इंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स होते हैं इनका रिलीज और सिक्रीशन is under the control of the hormones from the hypothalamus. अब hypothalamus से 2 तरह के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन. तो रिलीजिंग हार्मोन तो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेंगे, जबकि जो इनहिबिटिंग हार्मोन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी के सिक्रीशन को इनहिबिट करेंगे. ठीक है, तो हाइपोथैलेमस से 2 तरह के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन, और ये दोनों हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन के रिलीज को कंट्रोल करते हैं. ठीक है, अब सेकंड पार्ट आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी. इसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं. अच्छा हाँ, एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं. ठीक है, अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी को में भी फिर से 2 पार्ट होते हैं, पार्स नर्वोसा एंड इनफंडिबुलम. तो इनफंडिबुलम के थ्रू तो ये हाइपोथैलेमस से अटैच रहती है. ठीक है, अब इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, posterior pituitary does not synthesize any hormone. ठीक है, तो posterior pituitary खुद से कोई हार्मोन सिंथेसाइज नहीं करती है. इसके जो भी हार्मोन है वो सिंथेसाइज कहाँ होते हैं, हाइपोथैलेमस में. ठीक है, जबकि ये इन हार्मोन को सिर्फ स्टोर करती है और रिलीज करती है. तो मतलब जो हार्मोन है वो कहाँ बन रहे हैं, हाइपोथैलेमस में, और हाइपोथैलेमस से आके कहाँ आ जाते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और वहां पे सिर्फ स्टोर होते हैं, और जब इनकी रिक्वायरमेंट होती है तब रिलीज होती है. बट सिंथेसिस कहाँ होता है इनका, हाइपोथैलेमस में. ठीक है, इन 2 रीजन के अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड में एक तीसरा रीजन भी होता है जिसको हम कहते हैं पार्स इंटरमीडिया. ठीक है, बट ह्यूमंस के केस में, इन एडल्ट ह्यूमंस में दिस रीजन इज नॉट प्रेजेंट. ठीक है, तो ह्यूमन में ये सिर्फ फीटल डेवलपमेंट के टाइम पे तो प्रेजेंट होता है, बट उसके बाद में ये एट्रोफाई हो जाता है. सो इन एडल्ट ह्यूमंस देयर आर ओनली 2 पोर्शंस इन द पिट्यूटरी, दैट इज द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी. ठीक है, so it is a table of the different hormone which are secreted by the anterior pituitary.
So here you can see that anterior pituitary secrete different hormone. First, human growth hormone जिसको हम somatotropin भी कहते हैं. Second hormone is the thyroid stimulating hormone जिसको हम thyrotropin कहते हैं. Third hormone is the follicle stimulating hormone. Fourth is luteinizing hormone. 5 is prolactin. 6 is adrenocorticotropic hormone and 7 is melanocyte stimulating hormone. ठीक है. अब एंटीरियर पिट्यूटरी में डिफरेंट सेल्स होती हैं जो इन हार्मोन को सिक्रीट करती हैं. इट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट एट योर लेवल. तो अगर आप इसको याद करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव इट. ठीक है. अब दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग. These releasing and inhibiting hormone are released by the hypothalamus. ठीक है. तो ये रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन कौन रिलीज कर रहा है? हाइपोथैलेमस. और ये हार्मोन जो रिलीजिंग हार्मोन है वो स्टिमुलेट करेंगे इन हार्मोन के सिक्रीशन को जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट हो रहे हैं. ठीक है. और जो इनहिबिटिंग हार्मोन है वो क्या करेंगे? वो जो भी एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं उनके सिक्रीशन को सप्रेस करेंगे या इनहिबिट करेंगे. ठीक है. तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के लिए देयर इज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग. वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लेवल पे, बस आपको ये बात याद रखनी है कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीजिंग और हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन के रिलीज को स्टिमुलेट और सप्रेस करते हैं रेस्पेक्टिवली. ठीक है. इफ यू वांट टू लर्न दीज नेम यू कैन लर्न, अदरवाइज यू कैन लीव इट. ठीक है. So this is the functions or principal actions of the different hormone which are released by the anterior pituitary. ठीक है. तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रोपिन जो होता है इसका मेन फंक्शन होता है प्रमोट ग्रोथ ऑफ द बॉडी सेल्स. तो ये जितनी भी बॉडी सेल्स होते हैं उनके ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, इसलिए इसका नाम है ग्रोथ हार्मोन. ठीक है. अब ये ग्रोथ को कैसे प्रमोट करते हैं? आपको पता है बॉडी सेल्स किसकी बनी होती है? प्रोटीन को. तो अगर प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ेगा तो बॉडी सेल्स का ग्रोथ भी प्रमोट होगा. तो बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोटीन सिंथेसिस दे स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ द बॉडी सेल्स. ठीक है. दूसरा हार्मोन था थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. अब इसके नाम से ही पता चल रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग. तो ये क्या करता है? ये हार्मोन जाके थायराइड ग्लैंड पे जो इसके रिसेप्टर है उनसे बाइंड करता है और थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है फॉर द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स. ठीक है. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं गोनाडोट्रोपिन्स. ठीक है. अब ये दोनों ही हार्मोन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उन पे एक्ट करते हैं और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ठीक है. तो अगर हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात फीमेल के केस में करते हैं. ठीक है. अब इसका नाम ही है फॉलिकल स्टिमुलेट करना. ठीक है. तो ये फीमेल में फॉलिकल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं. ठीक है. तो इनिशिएट डेवलपमेंट ऑफ oocyte और यू कैन से दी फॉलिकल. ठीक है. और इन फॉलिकल से ये एस्ट्रोजन के हार्मोन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं. ठीक है. जबकि मेल्स के केस में FSH हार्मोन क्या करता है? टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए और यू कैन से इट प्रमोट्स द स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल्स. ठीक है. सिमिलरली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल के केस में क्या करता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करता है और कार्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है. ठीक है. जबकि मेल्स के केस में ये टेस्टिस को टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल सेक्स हार्मोन है उसको प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट करता है. ठीक है. प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन का क्या फंक्शन है? ये मेमोरी ग्लैंड को मिल्क सिक्रीशन के लिए प्रमोट करता है. ठीक है. तो प्रोलैक्टिन इज अ वीक हार्मोन. तो ये अलोन परफॉर्म नहीं करता है, बहुत सारे हार्मोन जब टुगेदर एक्ट करते हैं दे प्रमोट द मेमोरी ग्लैंड टू प्रोड्यूस द मिल्क, प्रमोट द मिल्क सिक्रीशन. ठीक है. द नेक्स्ट हार्मोन इज द एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. अब इसके नाम से ही पता चल रहा है एड्रीनोकॉर्टिको, दैट मीन्स एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पे. तो ये क्या करता है? ये एड्रीनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स एरिया होता है उसको अपने हार्मोन सिक्रीट करने के लिए प्रमोट करता है. ठीक है. मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो ये जो हार्मोन है इसका ह्यूमंस में एग्जैक्ट रोल नोन नहीं है, बट देयर आर स्टडीज जहाँ पे ये पाया गया है कि
अगर ये हार्मोन एक्सेस में प्रेजेंट होता है ये तो स्किन डार्कनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इट कॉजेज द डार्कनिंग ऑफ द स्किन, ठीक है। So this is the principal actions of the hormones of the anterior pituitary. ठीक है। The next part or portion of the pituitary gland is the posterior pituitary, जिसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि this part of the pituitary does not synthesize any hormone. It only store and releases two hormone. ठीक है। अब ये जो हार्मोन होते हैं ये कहाँ बनते हैं? हाइपोथैलेमस में। अब हाइपोथैलेमस में दो न्यूक्लियाई होते हैं, पैरावेंट्रिकुलर एंड सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, ठीक है। तो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो होता है वो सिंथेसाइज करता है हार्मोन ऑक्सीटोसिन, और जबकि जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है वो प्रोड्यूस करता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। अब इन न्यूक्लियस में देयर आर डिफरेंट न्यूरॉन्स, जो कि न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज में ये हार्मोन सिक्रीट होते, सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। अब इन न्यूरॉन्स के जो भी एक्सॉन्स होते हैं ये ट्रैक्ट बनाते हैं, और इन ट्रैक्ट के थ्रू ये हार्मोन आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो इस ट्रैक्ट को हम कहते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल ट्रैक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है? हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस में पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस है जहाँ पे हार्मोन बन रहे हैं सेल बॉडीज में। अब इन न्यूरॉन्स के ये एक्सॉन और एक्सोनल ट्रैक्ट हैं जो आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में टर्मिनेट हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके अपने हार्मोन जो होते हैं वो सिक्रीट कर देंगे, और फिर ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी इन हार्मोन को स्टोर करती है, और जब उनकी रिक्वायरमेंट होती है तो उन्हें रिलीज कर देती है, ठीक है। सो दैट मीन्स थ्रू द हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल ट्रैक्ट द पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन कंडक्ट फ्रॉम द हाइपोथैलेमस टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में तब तक स्टोर रहते हैं जब तक इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और रिक्वायरमेंट के टाइम पे ये रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन में क्या होता है कि यहाँ पे आपका होता है एक होता है पोर्टल सिस्टम, ठीक है, जो कि ब्लड वेसल का बना होता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के ठीक है, तो ओके जस्ट वन मिनट, मैंने आपको बताया था कि हाइपोथैलेमस क्या करता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उससे हार्मोन के रिलीज को रेगुलेट करता है। ये सिर्फ रेगुलेट करता है थ्रू रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। ये इसके हार्मोन सिंथेसाइज नहीं करता है, सिर्फ उनको रेगुलेट करता है थ्रू रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन जो ये खुद बना रहा है, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस से जो ये एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन का सिक्रीशन रेगुलेट होता है, ये होता है एक पोर्टल सिस्टम के थ्रू, ठीक है, जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। तो इट इज अ सिस्टम ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो ये इस पोर्टल सिस्टम के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन के सिक्रीशन को रेगुलेट करता है, जबकि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होते हैं उसका हार्मोन सिक्रीशन इज रेगुलेटेड थ्रू द हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल ट्रैक्ट, जो कि एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल्स का बना होता है, ठीक है। और ये पोर्टल सिस्टम ब्लड वेसल्स का बना होता है, ठीक है। नाउ there are two hormones which are released by the posterior pituitary, oxytocin and antidiuretic hormone. अब ऑक्सीटोसिन जो होता है ये दो ऑर्गन्स पे एक्ट करता है, ठीक है, या टिश्यूज पे एक्ट करता है, मदर के यूट्रस पे एंड ब्रेस्ट एरिया पे, ठीक है। अब यूट्रस में एक्ट करके क्या करता है, अगर आप लोगों को पता हो कि फीमेल्स में जब उनको डिलीवरी के टाइम पे एडमिट किया जाता है तो जिनमें लेबर पेन नहीं होता है उनको लेबर इंड्यूस करने के लिए ऑक्सीटोसिन के ही इंजेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ये एनहांस करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल सेल्स इन द वॉल ऑफ द यूट्रस, ठीक है। तो ये यूटेराइन जो वॉल होती हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन को एनहांस करता है, ठीक है, एंड इट विल हेल्प इन द डिलीवरी, ठीक। जबकि डिलीवरी के बाद ये क्या करता है, ये मेमरी ग्लैंड से मिल्क इजेक्शन को स्टिमुलेट करता है, इसलिए हम इसे मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी कहते हैं। जो प्रोलैक्टिन था वो क्या कर रहा था, मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर रहा था, जबकि ये मिल्क इजेक्शन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है।
तो डिलीवरी से पहले ये यूट्रस पे एक्ट करता है और उनके कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है सो दैट डिलीवरी विल बी स्मूथ, ठीक है। जबकि डिलीवरी के बाद ये मेमोरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा और उनको स्टिमुलेट करेगा मिल्क इजेक्शन के लिए, ठीक है। सो दीज आर द टू स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द ऑक्सीटोसिन हार्मोन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द मिल्क लेट डाउन हार्मोन, ठीक है। The next hormone which is released by the pituitary gland is the posterior pituitary gland is the antidiuretic hormone और vasopressin hormone. इसके नाम से पता चल रहा है antidiuretic, that means it decreases the urine production, ठीक है। अब ये यूरिन प्रोडक्शन को कैसे डिक्रीज करता है, एक तो क्या करता है कि ये किडनीज को स्टिमुलेट करता है कि वो ज्यादा वाटर को रीअब्सॉर्ब करें। अगर किडनीज वाटर एब्सॉर्ब ज्यादा करेंगी तो यूरिन का वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये स्वेटिंग भी कम कर देता है, अगर स्वेटिंग कम हो जाएगी तो वाटर लॉस स्वेटिंग के थ्रू कम हो जाएगा, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन का मतलब क्या होता है कि ये जो भी ब्लड वेसल्स होती हैं उनको कंस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ द आर्टरियोल्स, और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो लोग अल्कोहल बहुत ज्यादा पीते हैं उनमें यूरिन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, कोपियस यूरिनेशन। क्यों? क्योंकि अल्कोहल जो होता है वो एडीएच के सिक्रीशन को इनहिबिट कर देता है। तो अगर एडीएच नहीं होगा तो यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वही होता है उन पर्सन्स में जो कि अल्कोहल बहुत ज्यादा पीते हैं, ठीक है। सो हियर यू कैन सी इट इज अ टेबल इन विच यू कैन सी what are the factors which will cause the stimulation of these hormone and what are the principal action as I have already told you, ठीक है। तो जब कभी भी हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, मतलब पानी की कमी होती है, ठीक, तो हमेशा एडीएच के लेवल बढ़ जाते हैं, ठीक है, जिससे कि वाटर का रीअब्सॉर्प्शन ज्यादा होने लगे और यूरिन प्रोडक्शन कम हो और डिहाइड्रेशन जो है वो ठीक हो जाए, ठीक है। नाउ comes to the disorders of the pituitary gland secretion. तो ग्रोथ हार्मोन मैंने आपको बताया ये बॉडी की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। अब अगर ग्रोथ हार्मोन का कम या ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है तो उसकी वजह से डिफरेंट डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट डिसऑर्डर इज द ड्वार्फिज्म। ये किसकी वजह से होता है, हाइपोसिक्रीशन, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है, बॉडी की ग्रोथ को स्टिमुलेट करना। तो अब अगर ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट होगा तो ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी एंड द पर्सन विल रिमेन ड्वार्फ, ठीक है। सो ड्वार्फिज्म इज ड्यू टू द हाइपोसिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो अगर चाइल्डहुड या फिर इन्फेंट स्टेज में ग्रोथ हार्मोन के लेवल कम होते हैं तो बॉडी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी एंड इट विल लीड टू दी ड्वार्फिज्म, ठीक है। सो आजकल जो होता है ग्रोथ हार्मोन थेरेपी भी आ गई है। तो अगर आप चाइल्डहुड में ही ग्रोथ हार्मोन थेरेपी ले लेते हैं, वो लोग जिनमें ग्रोथ हार्मोन के लेवल कम है, तो द ग्रोथ रेट विल बी नॉर्मल, ठीक है। तो इन पर्सन्स में क्या होता है कि जो भी फिजिकल पार्ट हैं बॉडी के वो डेवलप होते हैं इन एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन, बट ओवरऑल रेट जो होती है डेवलपमेंट की वो कम हो जाती है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो, दूसरा डिसऑर्डर क्या है, जाइजेंटिज्म एंड एक्रोमेगाली, ठीक है। ये दोनों ही हाइपर सिक्रीशन से होते हैं, ठीक। बट जाइजेंटिज्म तब होता है अगर ये हाइपर सिक्रीशन बिफोर एडोलेसेंस होता है, मतलब कि चाइल्डहुड या इन्फेंट या ग्रोइंग स्टेज में होता है, ठीक है। जबकि एक्रोमेगाली कंडीशन तब होती है जब हाइपर सिक्रीशन एडोलेसेंस के बाद होता है, मतलब ग्रोथ पूरी हो चुकी है, ठीक है। तो जाइजेंटिज्म में क्या होता है, क्योंकि ये बिफोर एडोलेसेंस ही होता है, तो इसमें जो बोन्स होती हैं वो भी लंबी हो जाती हैं। इसकी वजह से जो पर्सन्स होते हैं उनकी हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है, दे मे ग्रो अप टू 8 फीट टॉल, ठीक है। जबकि एक्रोमेगाली में क्या है, क्योंकि वो एडोलेसेंस के बाद हाइपर सिक्रीशन की वजह से हो रही है, तो अब पर्सन को जितना लंबा होना था वो तो लंबा हो चुका, तो कैन नॉट ग्रो टॉलर। बट यहाँ पे क्या होता है कि बोन्स जो होती हैं वो थिक हो जाती हैं, ठीक है, एंड सॉफ्ट टिश्यूज कंटिन्यू टू ग्रो। तो यहाँ पे जो पर्सन्स होते हैं उनकी बोन्स बिकम थिक, ठीक है। इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्रोमेगाली। तो यहाँ पे पर्सन जो होते हैं वो टॉल नहीं होते हैं, बट उनके जो टिश्यूज होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं और बोन्स थिक हो जाती हैं, ठीक है। द नेक्स्ट डिसऑर्डर इज डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है।
ये किसकी वजह से होता है? ये हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच या एंटी डायूरेटिक हार्मोन की वजह से होता है। ठीक है, तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी है तो क्या होगा, जो पर्सन है दे हैव टू गो अगेन एंड अगेन फॉर द यूरिनेशन, तो यूरिनेशन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा और बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक, it is due to the hyposecretion of the ADH from the posterior pituitary. ठीक, so this was all about the basics of the endocrine system and pituitary gland. Rest of the gland like thyroid gland, pancreas, adrenal gland, that we will discuss in the next lecture. ठीक है।